शिक्षकगण अथवा मेरे साथी और मेरे सहपाठी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन और प्रणाम। मैं राजकुमार वर्मा मास्कॉम का छात्र हूँ और मैं पहली सत्र में हूँ, जिससे आप कह सकते हैं पहले सेमेस्टर में। तो मैं एक कविता या आप बोल सकते हैं विवेकानंद जी की एक कुछ पंक्तियाँ हैं, उनसे शुरुआत करना चाहूँगा और उन्हें अपनी साइड से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और इस पावन मौके पे जो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, साथ में विवेकानंद जी की जन्मदिन को भी मना रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ये दिन आप सभी के लिए कुछ आपके जीवन में कुछ जोड़े और आपको कुछ सिखाए साथ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो विवेकानंद जी ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा है, जो अपने को जानता है, जो अपने को जानता है वह कभी अपनी मंजिल से हार नहीं मानता है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपने कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा। So as we are celebrating the birthday of Swami Vivekananda, and we know that we have been celebrating this National Youth Day, okay, on this very auspicious day of 12th of Jan, and he has always been very inspiring for the youth, and he has always been saying that let's implement the ancient education of India, the Vedas, the Upanishads, and all the teachings that India has came to. Let's bring it together to the modern education, and let's bring it to the youth so that they can bring something to the nation, to the country, to the world, to the universe. Because recently we all have seen that India has been reaching moon, sun, and has been emerging as one of the very developed nations. Even today, every country is recognizing India as one of the eminent countries. Everybody is calling out India's name on the international platform. Everybody is talking about India right now. So we, as the youth of India, I believe we should always stand for our belief, faith, and whatever we want to do. I feel that we should do that. His teachings have always been very important, and he has always been paying very importance to the education, tolerance, and self-service that has left India very impactful, and it has been very lasting, impactful experience when he said something about India. So उनका कुछ कहना है, जब उन्होंने ये कहा था कि उठो युवा, जागो और तब तक चलो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। एंड उन्होंने ये जब पंक्तियाँ कही थी, उनका जो उनकी भावनाएं थी या उनके जो संघर्ष थे जो उन्होंने अपने युवावस्था में किए थे, उन्होंने युवाओं को ये जरूर कहा था कि उठो एंड तब तक आप आगे बढ़ो, तब तक जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पे हमारे सारे विद्यार्थी सभी लोग कुछ अपने परिवार का सपोर्ट करना चाहते होंगे, कुछ समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते होंगे, कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहते होंगे। आज के युवा कल होकर पॉलिटिशियंस बनेंगे, आज के युवा कल होकर इंजीनियर्स बनेंगे, आज के युवा कल होकर के न्यूज़ रिपोर्टर्स बनेंगे, कुछ शिक्षक बनेंगे, कुछ अध्यापक बनेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे होंगे। हम लोग किसी ना किसी तरीके से हमारे देश की सेवा कर ही रहे होंगे। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, और ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी है कि परिश्रम की डोर पकड़ चलना सीख, खुद को खुद से मिल और आगे बढ़ना सीख, जितना सीख खुद के लिए सीख, खुद को खड़ा करना सीख। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही राजकुमार वर्मा। हमें अपने आप को पहचानना है, और जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा कि हमारे अंदर कौन सी वो क्वालिटी है, तो हमारी गति और बढ़ जाएगी, हमें विकास का पैमाना और ऊपर चला जाएगा। अब आपके सामने निशी कुमारी our renowned philosopher, scholar, and writer. In this speech
Swami Vivekananda was born in Meerut in Kolkata to Datta family on 12th January 1863. Since his early childhood, the life of Swami Vivekananda was greatly influenced by his mother, and she played a significant role in his shaping his life. He completed his graduation from the University of Calcutta. After completing his graduation, he then went on to pursue law and practiced as an attorney in the High Court. And no speech of Swami Vivekananda is complete without mentioning his immense contribution towards Indian society. Swami was a patriot, one who preached about the national consciousness lying dormant in each Indian mankind. He strongly advocated the teaching that providing service to humanity is the most sincere form of worship and allows one to visually manifest the existence of God. Swami Vivekananda preached this principle, divinity of the soul, harmony among religions, oneness of existence, and non-dual nature of God. Swami Vivekananda devoted his life towards the upliftment of society. The Ramakrishna Mission, named after his guru, was organized and stabilized by Swami Vivekananda first May 1987. It is today considered the most outstanding religious organization. The sole mission of the organization is to provide voluntary work to the poor and those in need. I would like to conclude by saying that Swami Vivekananda led an inspiring life. His entire life was devoted to public services, serving humanity and upliftment of society. We should try to inculcate his teaching in our life, try to be a better human being and citizen. I would like to add the slogan, an inspiring slogan: arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you. आएंगे बालिका टुडू, उसके बाद विक्रम मुर्मू, जोर से बोलो। मुझे आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर होली का मनाने आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर युवा को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन था, "जो जागो तब तक भागो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करें।" हमें तब तक प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे लक्ष्य एक बार अगर हमारे कोई जाति होगा तो और होगा तो हमें तब तक प्रयास करना चाहिए कि जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मैं इसी के साथ अपने बारे में समाप्त करती हूँ। इस युवा दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और सभी छात्र छात्राओं को इस युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका इतिहास, इसको मनाने का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ था। हालांकि 1984 में ही इसकी घोषणा हो गई थी कि हम युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मानेंगे और अभी वर्तमान में हम उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ सभा कर रहे हैं और उसके विचारों को बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और अपने इसमें कुछ विचार को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जो इन्हीं के विचारों से मैं प्रभावित हो रहा हूँ। हमारी अभी वर्तमान स्थिति में युवाओं की बहुत संख्या है। इसी कारण ये हमारा देश अभी युवाओं का देश भी कहलाता है। युवा वो शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र की दिशा को बदल सकता है और वो किसी भी दिशा में उसे मोड़ सकता है। वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए
युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं पर ही हमारी राष्ट्र को 1947 तक विकसित करने का एक जिम्मा दिया है, जो हमें उठाना है। और इस पावन अवसर पर मैं स्वामी जी के कुछ वचनों को समझना चाह रहा हूँ। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि चिंतन करो, चिंता की, नए विचारों को जन्म दो, क्योंकि नए विचार ही हमें महान बनाते हैं और वही हमें गिराते हैं। ये विचार, हम इतने सारे महापुरुषों को जानते हैं, तो उनका कारण क्या है? उनका सिर्फ एक ही कारण कि उनके विचार, उनका चरित्र, इन 2-3 चीजों ने ही किसी इंसान को महान बनाया। इसीलिए हम किसी भी धर्म को देखें या जाति को देखें या किसी के कर्म कांडों को देखें, तो उसमें हमको बाहरी जो दिखावा है उसको देखना नहीं। इसीलिए धर्म में यदि बताया गया है कि ये चीज सही है, तो उस चीज को हमें देखना है, ना कि धर्म को। सभी जानते हैं कि 11 सितंबर 1900, सॉरी हमको याद नहीं आ रहा है, 1893 सभी को मालूम है कि शिकागो में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उसके पीछे क्या सार है, उन्होंने उस सभागार में किस चीज को रखा, ये सभी के मनोवृत्ति में अभी स्मरण नहीं होगा। लेकिन उसका मेरे अनुसार ये निष्कर्ष में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उन्होंने सिर्फ धर्म की प्रचार प्रसार के लिए नहीं, बल्कि धर्म के पीछे जो मानवतावादी सिद्धांत, उसका विचार है, उनको प्रसारित करते हुए उस शिकागो में उपस्थित सभी ने उनकी वाहवाही की थी। और यही विचार चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो या अन्य व्यक्तित्व के धनी और भी महान राजनेता हो, सभी में चरित्र निर्माण और विचारों ने ही उन्हें महान बनाया। इसीलिए मैं इस सभागार में खड़े होकर सभी युवाओं से मैं अपेक्षा करता हूँ और कुछ बातों कर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे बढ़ा, आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। नीचे दिखाने के लिए लोग है ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू दुनिया के लिए, तू कुछ दुनिया के लिए कर, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। सबसे बढ़िया स्पीच इसका रहा है। विक्रम मुर्मू ने जो बातें कही, उन्होंने चिंतन की बातें कही और युवक को हर कदम पर चिंतन करने की जरूरत है। यदि हम सोचते हैं तो इससे क्या होता है, गलत होने की गुंजाइश कम होती है। और इसलिए कोई भी चीज को ब्लाइंडली ना ले, सोचे जरूर कि हमें क्लास आना है कि बिग बाजार घूमना है। ये सोच उत्पन्न होना चाहिए। हमें एग्जाम लिखना है या लिख कर लाना है, ये सोच उत्पन्न होना चाहिए। और जब सोच उत्पन्न होगा तो हम गलत राह पे नहीं भटकेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
और यही संदेश है आज विवेकानंद जी का। अब आपके सामने आ रही है पलक अग्रवाल, उसके बाद दुलाल राजवार। पलक। All respected teachers and all dear students with wonderful afternoon. स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना है। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सर्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते। उनका आदर्श वाक्य, उठो, जागो और तब तक बदलो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद न केवल एक सामाजिक सुधारक बल्कि एक शिक्षक भी। शैक्षणिक विचारों में उनका योगदान सर्वोच्च महत्व का है। यह शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाता है। देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके लिए शिक्षकों की पठन नीति में भी भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। तभी तो शिक्षक बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन करेगा। देखा जाए तो संघर्ष हम सबके जीवन में होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अपनी कमजोरी बनाएं या फिर ताकत बनाएं। पलक, आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। दुलाल राजवार।